آگے بڑھیں آپ کو بتائیں شہر قائد میں گیس مسائل حل نہ ہو سکے۔ سہری میں شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ریلوے کالونی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ سہری میں گیس صرف 15 سے 20 منٹ تک رہی، پریشر انتہائی کم تھا، کھانا ہوٹلوں سے خریدنا پڑتا ہے۔ رمشا اسماعیل کی رپورٹ۔ شہری کے اوقات میں بھی مشکلات کم نہیں ہو رہی۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جہاں سحری اور افطار کے اوقات میں بھی گیس کی فراہمی یقینی بنانی چاہیے، وہاں شہری گیس کی عدم دستیابی سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ ریلوے کالونی کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ سحری کے وقت گیس صرف 15 سے 20 منٹ کے لیے آئی۔ اس کا پریشر بھی انتہائی کم تھا، جس کے باعث کھانا تیار کرنا مشکل ہو گیا۔ گیس نہ ہونے سے سحری اور افطار کے لیے کھانا ہوٹلوں سے خریدنا پڑ رہا ہے، جس سے اخراجات میں اضافہ ہو گیا۔ کئی گھروں میں سلنڈر استعمال کیے جا رہے ہیں، مہینے میں 7 سے 8 ہزار روپے اضافی خرچ ہو رہے ہیں۔ آج سیری میں بھی گیس آیا تھا، مگر تقریباً 10 سے 15 منٹ تھا، اس کے بعد گیس نہیں آیا۔ بل تو ڈبل آتے، لیکن گیس تو بالکل ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ گیس کب آ رہا ہے کب نہیں آ رہا۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران کم از کم سحری اور افطار کے اوقات میں گیس کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائی جائے، تاکہ انہیں مزید مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ مین اجلان کے ساتھ رمشا اسماعیل، سٹی 21۔ ویلکم بیک۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مندی کے گہرے بادل چھا گئے۔ سال 2026 کی سب سے بڑی گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ کاوش میمن کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی دیکھنے میں آئی، جہاں سال 2026 کی سب سے بڑی گراوٹ ریکارڈ کی گئی۔ کاروباری روز کے دوران 100 انڈیکس میں 7,205 پوائنٹس تک کمی دیکھی گئی۔ مندی کے باعث انڈیکس 1,71,647 پوائنٹس کی سطح تک آ گیا۔ کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 6,682 پوائنٹس کی کمی سے 1,72,170 کی سطح پر بند ہوا۔ شدید مندی کے باعث سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے۔ ماہرین کے مطابق مارکیٹ میں پروفٹ ٹیکنگ اور ایران امریکہ کشیدگی کے باعث سرمایہ کار محتاط دکھائی دے رہے ہیں، جس کے اثرات مارکیٹ پر نمایاں نظر آئے۔ دیکھیں، گزشتہ کچھ دنوں سے مندی کا رجحان آپ دیکھ رہے تھے۔ کل ایک اچھی ریکوری آپ نے دیکھا کہ تقریباً 5,000 سے زائد پوائنٹ کی ریکوری دیکھی گئی، اور مین جو وجہ جو ہے میوچل فنڈ اور دیگر فنڈ کی طرف سے سیلنگ کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ایران اور USA کا جو ٹینشن ہے اس میں کشیدگی مزید بڑھ گئی، جس کی وجہ سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 7,000 زائد پوائنٹ کی جو مندی دیکھی گئی۔ کیونکہ رمضان کا پہلا دن ہے، تھوڑی ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے اور بینک بھی آج کلوز ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑی والیوم کم نظر آئے۔ گزشتہ کاروباری دن کے اختتام پر اسٹاک ایکسچینج میں 5,702 پوائنٹس کا اضافہ ہوا تھا، جس کے ساتھ انڈیکس 1,78,853 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ کیمرامین فرحان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ یہاں آپ کو بتائیں رواں مالی سال 7 ماہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 51% کمی ریکارڈ کی گئی۔ 7 ماہ میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری $70 کروڑ سے بھی کم رہی، جو گزشتہ مالی سال 7 ماہ میں $1,43 کروڑ کے قریب تھی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ لمبے عرصے کی سرمایہ کاری دوست پالیسی کی ضرورت ہے۔ اشرف خان کی رپورٹ۔ غیر ملکی سرمایہ کاری میں رواں مالی سال کے پہلے 7 ماہ کے دوران 51% کی نمایاں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق مالی سال 26 کے جولائی تا جنوری کے دوران خالص FDI کی مالیت $69 کروڑ 40 لاکھ رہی، جو گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے میں $1,42 کروڑ 90 لاکھ تھی۔ ماہانہ بنیاد پر FDI میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی، اور جنوری 2026 میں یہ 51% سے کم ہو کر $11 کروڑ 10 لاکھ رہی، جو جنوری 2025 میں $22 کروڑ 60 لاکھ امریکی ڈالر تھی۔ پورٹ سرمایہ کاری میں بھی منفی رجحان دیکھا گیا، جہاں مالی سال 26 کے پہلے 7 ماہ کے دوران $28 کروڑ 70 لاکھ کا خالص انخلا ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق عالمی سطح پر غیر یقینی معاشی صورتحال اور ملکی میکرو اکنامک ایڈجسٹمنٹ غیر ملکی سرمایہ کاروں کے پاکستان کے حوالے سے اعتماد پر اثر انداز ہونے والے اہم عوامل ہیں۔ ماہرین کی رائے ہے کہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے طویل المدتی اور سرمایہ کار دوست پالیسیوں کی ضرورت ہے۔ مجموعی غیر ملکی سرمایہ کار، جس میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری، پورٹ فولیو سرمایہ کاری اور غیر ملکی عوامی سرمایہ کاری شامل ہیں۔ مالی سال 26 کے جولائی تا جنوری کے دوران 65% کم ہو گئی۔ اس عرصے میں سرمایہ کاری کی آمد $96 کروڑ 70 لاکھ کم ہو کر $51 کروڑ 70 لاکھ رہ گئی، جبکہ گزشتہ مالی سال اسی عرصے میں یہ $1,48 کروڑ 40 لاکھ ریکارڈ کی گئی تھی۔ اشرف خان، سٹی 21۔ ہائی کورٹ، آئینی بینچ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کے سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ عدالتوں سے متعلق گورنر سندھ کے آرڈیننس کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ ترکاری وکیل نے موقف دیا کہ بل اسمبلی سے منظور ہو چکا، درخواست غیر مؤثر ہے۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا
गेजेट नोटिफिकेशन शाये नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत 16 मार्च तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच के रूबरू गुलिस्तान जौहर के रफाही प्लॉट का केस। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 10 में मस्जिद और पार्क की जमीन पर तामीरात के खिलाफ केस सुना गया। SPCA ने तस्लीम किया, बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं। अदालत ने कार्रवाई न करने पर बरहमी का इजहार किया। अदालत ने रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 18 मार्च तक मुलतवी कर दी। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच में अशरो ज़कात ऑडिटर केस सुना गया। कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटर को मुस्तकिल न करने पर अदालत ने सिंध हुकूमत से जवाब मांग लिया। अदालत ने पूछा, एक मुलाजिम मुस्तकिल और दूसरा क्यों नहीं। 2022 में तैनाती का हवाला देते हुए समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 20 साल पुराने मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम अत्ता हुसैन की जमानत मुस्तरद कर दी। अदालत ने मजीद इंक्वायरी से इनकार करते हुए ट्रायल जारी रखने का हुक्म दे दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट गरबी में डकैती मुज़ाहमत का केस की समाअत। इस सगासा के गवाहान के बयानात मुकम्मल। केस फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। अदालत ने वीडियो लिंक पर पेशी न होने पर मुल्जिमान उमर और हम्माद के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के शोभा सर्जरी ने 3 रोज़ा आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया। नुमाइश में ऑपरेटिंग थिएटर के अलावा प्रैक्टिस करने वाले सर्जनों ने अपनी तख्लीक सलाहियतों का मुजाहिरा किया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में शोबा सर्जरी के तहत 3 रोजा आर्ट्स नुमाइश, ऑपरेशन थिएटर के अलावा सर्जन्स की तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा। नुमाइश में 170 से ज्यादा फन पारे रखे गए, जिनमें तेल और एक्रिलिक पेंटिंग, मट्टी के मुजस्मे, फोटोग्राफी, खत्ताती, लकड़ी के नक्शो निगार, धागे और नेल आर्ट, कढ़ाई, एक्वेरियम, डूडल्स और 40 से ज्यादा ममालिक के करेंसी नोट्स जैसा मुनफरिद मजमुआ शामिल था। शोबा सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर सलीम इस्लाम ने कहा, ये इकदाम सर्जन्स की इंसान दोस्ती और तख्लीकी जोहदों को उजागर करता है, जिससे तिब और फनून के दरमियान गहरे ताल्लुक को फरोग मिलता है। से हमें ये लगा कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में एक बड़ा अच्छा ये एक तरीका है। दूसरा ये कि ये इससे एक वेलनेस का कॉन्सेप्ट भी आता है कि ठीक है, हम सर्जरी में एक कभी ज़िंदगी मौत का डिसीजन ले रहे होते हैं, मगर इसमें हम कम से कम ये भी दिखा सकते हैं कि हम सर्जरी के अलावा भी और टैलेंट्स रखते हैं। आर्टिस्ट ने कहा कि शोबे सेहत से जरूर मुंसलिक हैं, मगर पढ़ाई के साथ साथ शौक को भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो जो मेरी फील्ड है उसका और आर्ट्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है। प्लास्टिक सर्जरी खुद ऐसी फील्ड है जिसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन इसका बहुत बड़ा पार्ट है। आप जब सर्जरी करते हैं आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं। आप सोचते हैं मैं यहाँ से ये पीस इसको इस तरह से मूव करूँगा तो शक्ल कैसे चेंज होगी, स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगी। यही काम आर्ट में करते हैं। कभी कभी कैनवस आपका पेशेंट भी होता है, आप उस पर इंसिजन, सूचर्स, इसके साथ अपनी आर्ट्स एक्टिविटी और क्रिएटिविटी को करते हैं। मैंने यहाँ पर नेचर आर्ट का अपने कुछ स्पेसिमेंस रखे हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि हाउ टू मेक एन एक्वास्केप। और एक कन्फाइंड स्पेस में जब आपके पास जगह की कमी हो और आप सिर्फ एक स्क्वायर फुट भी अगर आपके पास जगह हो तो उसके अंदर आप एक्वेरियम हॉबी को और फिश कीपिंग को प्लस एक्वास्केपिंग को किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तलबा ने आर्ट्स नुमाइश के इनेकाद को सराहा। इन द सेंस के लाइक आप मेडिसिन के अलावा भी बहुत कुछ लाइक आप बहुत चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप टैलेंटेड हो सकते हो। इसको तो देख के यही लग रहा है कि मतलब बहुत टैलेंट है जो सिर्फ मेडिसिन तक के जो है वो नहीं है, और भी जो लोग जो है वो बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज क्रिएटिविटी अलाइव करती है ये सारी चीज़ें, और क्रिएटिविटी हमारी जॉब में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट चीज़ों को सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, तो या इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आर्ट्स नुमाइश में स्कूल के तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। माह सयाम में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने ईद उल फितर की शॉपिंग के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। मुस्तहिक अफराद 500 रुपए में 10,000 के मलबूसात और दीगर अशिया की खरीदारी कर सकते हैं। चेयरमैन निसार अहमद कहते हैं कि अल्लाह की तौफीक से कार खैर के काम अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल का ईद उल फितर पर बड़ा ऐलान। 500 रुपए में 10,000 की शॉपिंग का सपना होगा पूरा। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने खिदमत खल्क के सिलसिले में मुनफरिद और बावकार इकदाम मलबूसात डिपार्टमेंटल स्टोर से मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए 10,000 रुपए तक की शॉपिंग कर सकेंगे। चेयरमैन आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट चौधरी निसार अहमद का कहना था, मलबूसात स्टोर में कपड़े, जूते, वेस्टकोट और बच्चों के खिलौने शामिल हैं। हमने ये स्टोर यहाँ पे भी एक खोला हुआ है, एक स्टोर हमने कोरंगी में भी खोला है क्रॉसिंग पे। फ्री में स्टोर 10,000 की शॉपिंग करें और जो चीज पसंद हो, देखिए बच्चों के खिलौने यहाँ पे रखे हैं। तो ये खिलौने भी इसलिए हैं कि इस खिलौने की कीमत बाजार में तो होगी 5,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे 800 रुपए लिखे हुए।
इसी तरह से कपड़ों पे लिखे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि ये देखिए कपड़ा है, अब इसमें 1500 रुपए के 1000 रुपए का ड्रेस है पूरा उसके लिए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी निसार अहमद का कहना था कि अफ्तार की बॉक्स की पैकिंग की तैयारी सुबह से शुरू हो जाती है। दोपहर को आलमगीर के तहत लगाए गए स्टॉल्स पर इसकी तरसील शुरू हो जाती है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट गुज़िश्ता 30 सालों से जायद अरसे से हजारों की तादाद में रोजाना ये अफ्तार बॉक्सेस और खाना तकसीम करता है। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में कराची से चित्राल तक हजारों बॉक्सेस तकसीम होते हैं और इन शहरों में बदीन, मातली, संजोरो, सांगड़, हाला, मटियारी, भागनाड़ी, औस्ता, मोहम्मद बलूचिस्तान के अजला, जैकबाबाद और इस्लामाबाद, चित्राल, गिलगित और इसके साथ साथ जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं या जीटी रोड के साथ जो शहर हैं, जंग हो गया, अटक हो गया और दीगर जितने शहर, यहाँ पर रोज़ाना रमज़ान मुबारक के दिनों में इफ्तार तकसीम हो रहा है। इस मौके पर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन ने तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा किया कि वो हम पर एतमाद करते हैं, जिसकी वजह से कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला जाता है। कैमरामैन अब्दुल कयूब शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 20। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के शोभा सर्जरी ने 3 रोज़ा आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया। नुमाइश में ऑपरेटिंग थिएटर के अलावा प्रैक्टिस करने वाले सर्जनों ने अपनी तख्लीक सलाहियतों का मुजाहिरा किया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल में शोबा सर्जरी के तहत 3 रोजा आर्ट्स नुमाइश, ऑपरेशन थिएटर के अलावा सर्जन्स की तख्लीकी सलाहियतों का मुजाहिरा। नुमाइश में 170 से ज्यादा फन पारे रखे गए, जिनमें तेल और एक्रिलिक पेंटिंग, मिट्टी के मुजस्मे, फोटोग्राफी, खत्ताती, लकड़ी के नक्शो निगार, धागे और नेल आर्ट, कढ़ाई, एक्वेरियम, डूडल्स और 40 से ज्यादा ममालिक के करेंसी नोट्स जैसा मुनफरिद मजमुआ शामिल था। शोबा सर्जरी के चेयरमैन डॉक्टर सलीम इस्लाम ने कहा, ये इकदाम सर्जन्स की इंसान दोस्ती और तख्लीकी जोहदों को उजागर करता है, जिससे तिब और फनून के दरमियान गहरे ताल्लुक को फरोग मिलता है। से हमें ये लगा कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने में एक बड़ा अच्छा ये एक तरीका है। दूसरा ये कि ये इससे एक वेलनेस का कॉन्सेप्ट भी आता है कि ठीक है, हम सर्जरी में एक कभी ज़िंदगी मौत का डिसीजन ले रहे होते हैं, मगर इसमें हम कम से कम ये भी दिखा सकते हैं कि हम सर्जरी के अलावा भी और टैलेंट्स रखते हैं। आर्टिस्ट ने कहा कि शोबे सेहत से जरूर मुंसलिक हैं, मगर पढ़ाई के साथ साथ शौक को भी साथ लेकर चल रहे हैं। तो जो मेरी फील्ड है उसका और आर्ट्स का बड़ा गहरा ताल्लुक है। प्लास्टिक सर्जरी खुद ऐसी फील्ड है जिसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन इसका बहुत बड़ा पार्ट है। आप जब सर्जरी करते हैं आप बहुत सारी चीज़ें इमेजिन करते हैं। आप सोचते हैं मैं यहाँ से ये पीस इसको इस तरह से मूव करूँगा तो शक्ल कैसे चेंज होगी, स्ट्रक्चर कैसे चेंज होगी। यही काम आर्ट में करते हैं। कभी कभी कैनवस आपका पेशेंट भी होता है, आप उस पर इंसिजन, सूचर्स, इसके साथ अपनी आर्ट्स एक्टिविटी और क्रिएटिविटी करते हैं। मैंने यहाँ पर नेचर आर्ट का अपने कुछ स्पेसिमेंस रखे हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि हाउ टू मेक एन एक्वास्केप। और एक कन्फाइंड स्पेस में जब आपके पास जगह की कमी हो और आप सिर्फ एक स्क्वायर फुट भी अगर आपके पास जगह हो तो उसके अंदर आप एक्वेरियम हॉबी को और फिश कीपिंग को प्लस एक्वास्केपिंग को किस तरह से एंजॉय कर सकते हैं। तलबा ने आर्ट्स नुमाइश के इनेकाद को सराहा। हाँ, इन द सेंस कि लाइक आप मेडिसिन के अलावा भी बहुत कुछ लाइक आप बहुत चीज़ें हो सकती हैं जिसमें आप टैलेंटेड हो सकते हो। इसको तो देख के यही लग रहा है कि मतलब बहुत टैलेंट है जो सिर्फ मेडिसिन तक के जो है वो नहीं है, और भी जो लोग जो है वो बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज क्रिएटिविटी अलाइव करती है ये सारी चीज़ें, और क्रिएटिविटी हमारी जॉब में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट चीज़ों को सोचना, क्रिटिकल थिंकिंग करना, तो या इट्स रियली इंपॉर्टेंट। आर्ट्स नुमाइश में स्कूल के तलबा और तालबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन आगा रफीक के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। माह सयाम में आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने ईद उल फितर की शॉपिंग के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। मुस्तहिक अफराद 500 रुपए में 10,000 के मलबूसात और दीगर अशिया की खरीदारी कर सकते हैं। चेयरमैन निसार अहमद कहते हैं कि अल्लाह की तौफीक से कार्य खैर के काम अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल का ईद उल फितर पर बड़ा ऐलान। 500 रुपए में 10,000 की शॉपिंग का सपना होगा पूरा। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट ने खिदमत खल्क के सिलसिले में मुनफरिद और बावकार इकदाम मलबूसात, डिपार्टमेंटल स्टोर से मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए 10,000 रुपए तक की शॉपिंग कर सकेंगे। चेयरमैन आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट चौधरी निसार अहमद का कहना था, मलबूसात स्टोर में कपड़े, जूते, वेस्टकोट और बच्चों के खिलौने शामिल हैं। हमने ये स्टोर यहाँ पे भी एक खोला हुआ है, एक स्टोर हमने कोरंगी में भी खोला है क्रॉसिंग पे। फ्री में स्टोर 10,000 की शॉपिंग करें और जो चीज पसंद हो, देखिए बच्चों के खिलौने यहाँ पे रखे हैं। तो ये खिलौने भी इसलिए हैं कि इस खिलौने की कीमत बाजार में तो होगी 5,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे 800 रुपए लिखे हुए। इसी तरह से कपड़ों पे लिखे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि ये देखिए कपड़ा है,
अब इसमें 1500 रुपए के 1000 रुपए का ड्रेस है पूरा उसके लिए। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के ट्रस्टी निसार अहमद का कहना था कि अफ्तार की बॉक्स की पैकिंग की तैयारी सुबह से शुरू हो जाती है। दोपहर को आलमगीर के तहत लगाए गए स्टॉल्स पर इसकी तरसील शुरू हो जाती है। आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट गुज़िश्ता 30 सालों से जायद अरसे से हजारों की तादाद में रोजाना ये अफ्तार बॉक्सेस और खाना तकसीम करता है। इस हवाले से पूरे पाकिस्तान में कराची से चित्राल तक हजारों बॉक्सेस तकसीम होते हैं और इन शहरों में बदीन, मातली, संजोरो, सांगड़, हाला, मटियारी, भागनाड़ी, औस्ता, मोहम्मद बलूचिस्तान के अजला, जैकबाबाद और इस्लामाबाद, चित्राल, गिलगित और इसके साथ साथ जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं या जीटी रोड के साथ जो शहर हैं, जंग हो गया, अटक हो गया और दीगर जितने शहर, यहाँ पर रोज़ाना रमज़ान मुबारक के दिनों में इफ्तार तकसीम हो रहा है। इस मौके पर आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन ने तमाम डोनर्स का शुक्रिया अदा किया कि वो हम पर एतमाद करते हैं, जिसकी वजह से कार्य खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा डाला जाता है। कैमरामैन अब्दुल कयूब शेख के हमरा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी, सिटी 20।